Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahashite Shakata Lalagadaga. Baru Shete Limantankras Secret de Sha'antike Zakora Mantankras Secret de Pahalama Shete City. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए सब कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. Let's pray in tongues, everybody. Shetakalamas kro shike de paro shetele mantangra sekre de zoire shatalamaso raparaga palo shakalamaso rabaraga shike de zanamaso yeramashete de shatalamandangra so raparaga. Mandangra sukla da gra seke de shatalamazo yaramanda shatalamandang so yaramanda grada a little slower, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. सब अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. Just minister to the Lord. आइए प्रभु की उपासना करिए. Shatalamantankra so gredi shatalama. Lord Jesus, you're so wonderful. Maanteke zakalaba so kraatike shatalamanza gradada. Mendo shike de zakalabara baraga se de. Paru shatalama so raparaga. Ire manzangra da shede de shatalabalamana. Paru shatalama se de shatalama. Yesho lamanta krada da grasekre. Lo o sheke nama satolo bora baraga shege de. Raanta kraza klanta glaze grez. Mando shakalamaso raparaga. She de shatalamaso rapagla dangra sograda. Alamasho lamanda grada da gra. She de shatalamanda grada. Shaanda da sheke de shatalamanzanglada. Maru shatal aye आवाज उठाइए. Speak in tongues. Setalamanzo rabaraga shege de. Maanda gra de shatalamaso raparaga. Maande de shatalamaso raparabaraga. Pa angle de sheke de jakada daga. Ba alamaso raparaga shege de. La antize ma antike zakalaga gradu shatalama. Re-e-de-de shatalamanda grada. Paroshe de satalamazo ramanta krade. Yes, salamandang grasso grada. Pa angle de shete lemanta gradada. Parosha talamanda grada shete de. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we praise you. There is none like you. आपके जैसा और कोई नहीं. स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी के नीचे नहीं. हम आपकी प्रशंसा करते हैं. We honor you today. We honor you, Father. There is none like you. There is none like you. Shantangra sopre etizede.
Oh, shedele manta grada da 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 grace de de. Ma angle shede de shatala barabaraga segrede. Oh, hallelujah. Honor you, Lord. We honor you. We honor you. We magnify your name. We magnify your name. किसी का भी मुंह बंद न रहे, प्रशंसा करिए. Just honor God. Lishatala Parush Shatalaman Zaglada Glada Shatalamanda da Grace Gradangra Sograda Pala Shatalamaze de Shatalamazo Rabaraga Le Shatalama. Father, we honor you, we praise you as we minister to you. हम आपकी उपासना करते हैं प्रभु, आपके जैसा और कोई नहीं. We magnify your name. We give glory. आपके नाम को महिमा देते हैं आज. Praise the Lord. Thank you, Lord. Blessed Jesus, we honor you. We honor you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, mighty God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, आइए समृद्धि की शिक्षाओं में जाएंगे. Let's see the topic. Yeah. अदन में समृद्धि या prosperity in Eden. Okay. अदन में समृद्धि या prosperity in Eden. हम 2026 में हम अदन की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है. ओके, आप सोच रहे होंगे शायद कि हम 2026 में एदन के बारे में क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है. तो जो उसने अदन में किया वो परमेश्वर आज भी, परमेश्वर की मनसा वो है, परमेश्वर का उद्देश्य वो है, और हमारा परमेश्वर बदलता नहीं. तो अदन में परमेश्वर का जो व्यवहार था, अदन में परमेश्वर का जो सोच था, वही आज परमेश्वर का सोच है, परमेश्वर का तरीका है. क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं. ही डजंट चेंज. ओके, तो आज हमारा आखिरी भाग है अदन की समृद्धि में, भाग 3. उत्पत्ति 2:8 देखिए. जेनेसिस 2:8. या तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई. ध्यान से देखिए कि जो परमेश्वर बदलता नहीं, आजकल और युगान युग एक सा है, उसने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया. मतलब आदम को कहां रहना है, आदम को क्या करना है, ये भी परमेश्वर ने आदम को बताया. परमेश्वर ने आदम के लिए अवसर तैयार किए, अपॉर्चुनिटीज. परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक अवसर बनाया, एक माहौल बनाया, एक जगह बनाया और वहां पर आदम को लेकर के डाल दिया. आदम को जिसने उसने रचा था, रख दिया. नेक्स्ट वर्स. ओके, 2:9. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, परमेश्वर ने उगाया. हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं. ईदन की वाटिका में प्रभु अलग है, 26 में अलग है नहीं. हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है. ही इज द सेम. ही डजंट चेंज. तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए. सिर्फ खाने में ही अच्छे ना हो, लेकिन दिखने में भी अच्छे हों. हाउ ब्यूटीफुल इज आवर फादर. हमारा पिता कितना बढ़िया है, राइट?
अमेजिंग। जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में, सब बोलिए बीच में, जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, बीच में, इन द मिडल। ओके, वर्स 10, नेक्स्ट वर्स, या उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। परमेश्वर ने आदम की वाटिका को बनाया, उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जिसमें फल देखने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, और फिर एक महानदी को आजाद किया ताकि वाटिका को सींचा जाए। नेक्स्ट वर्स 15, 15वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें, वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। परमेश्वर ने आदम के लिए एक अवसर दिया, एक मौका दिया, एक वातावरण दिया, प्रावधान पहले से तैयार कर दिया, ताकि प्रभु की मंशा थी कि मानव जाति प्रावधान के लिए संघर्ष न करें। क्योंकि आज की दुनिया में हम प्रावधान से सफलता को नापते हैं। ये दुनिया ऐसी है कि लोग प्रावधान से अपनी सफलता को नापते हैं। दे मेजर सक्सेस बाय प्रोविजन। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, और उत्पत्ति की किताब में प्रभु ने एदन की वाटिका में सारा प्रावधान तैयार किया, और सारे प्रावधान को तैयार करने के बाद आदम को वहां पर रखा, ताकि आदम का लक्ष्य प्रावधान न हो। प्रेज गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही चीज की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो प्रावधान की तरफ बढ़ता है तो परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ सकता, और अगर परमेश्वर की तरफ बढ़ता है तो प्रावधान को देख नहीं सकता। एक ही समय में 2 चीजों का पीछा करना बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर ने ईदन की वाटिका बनाया, उसमें पेड़ पौधे उगाए, फल भी रखा, नदी भी बहने दिया, और फिर ये सब तैयार करके आदम को ईदन की वाटिका में रखें, ताकि आदम का लक्ष्य प्रावधान न हो, पर आदम का लक्ष्य परमेश्वर हो। प्रेज गॉड। ओके, और हम आज की दुनिया में 26 में जब हम हैं, यहां से मानव जाति ईदन की वाटिका से बहुत दूर चली गई है। क्योंकि मनुष्य के मन में आज के दिन में सिर्फ प्रावधान है। वो सिर्फ प्रावधान के बारे में सोचता है, उसका हर एक निर्णय प्रावधान के विषय में है, और अगर थोड़ा सा प्रावधान है तो वो अपनी सफलताओं को प्रावधान से नापता है। प्रेज गॉड। ओके, बट सच्चाई क्या है? यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। मतलब प्रावधान में रहकर परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करें, प्रावधान में रहकर परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारियों को पूरा करें, प्रावधान में रहकर परमेश्वर को प्रकट करें। ये परमेश्वर का एजेंडा था। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 16, वर्स 16। तब यहोवा परमेश्वर ने पहले उसको वाटिका में रखा, सब कुछ दे दिया, सब कुछ परमेश्वर ने उगाया, परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ आदम के हाथ में दे दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब कुछ तेरा है। तूने उसे लगाया नहीं, तूने उसे बनाया नहीं, फल के लिए मेहनत नहीं किया, ये सब मैं तुझे दे रहा हूं, तू सब कुछ खा सकता है। पानी से पी सकता है, पेड़ के नीचे बैठ सकता है, पेड़ के सारे फल को खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ आपका है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। वर्स 17। पर भले और बुरे क्या ज्ञान का जो वृक्ष है, जो बगीचे के बीच में है,
उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मुझसे अलग हो जाएगा। मरने का मतलब है अलग होना। शारीरिक मृत्यु का मतलब है कि आप शरीर से आप अलग हो गए। आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए। और यहां पर लिखा है कि उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तुम मुझसे अलग हो जाएगा। यू विल बी सेपरेटेड। सोचिए, 100 पेड़ प्रभु ने आदम को दिए और प्रभु ने उनसे कहा कि एक पेड़ के फल को तुम्हें नहीं खाना है, डोंट ईट इट। ये ईदन की वाटिका में सबसे पहले मानव जाति के साथ बात हो रहा है परमेश्वर का। सोच के देखिए, पाप नहीं है, कुछ नहीं है, ईदन की वाटिका है, परफेक्ट वर्ल्ड है, सिद्ध दुनिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई गंदगी नहीं है, कोई पाप नहीं है। और वो उसके बीच में प्रभु उसे आज्ञा दे रहा है और प्रभु ने कहा कि सब पेड़ को तुम खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ को छोड़ दो, डोंट डोंट ईट इट। अक्सर इंसान भूल जाता है कि उसके पास ये आशीषें कहां से आई हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि जब तुम्हारे दास दासी बढ़ जाएं, जब तुम सफल होने लगो, जब प्रावधान आजाद होने लगे, तो भूल मत जाना कि वो परमेश्वर का हाथ है, कि परमेश्वर ने तुम्हें ये सब दिया है। और वही मकसद है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस, कि प्रभु ने भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो बगीचे के बीच में है, और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि इस वृक्ष के फल को आप खाना मत। 100 वृक्ष हैं, 99 वृक्ष से आप खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष के फल को आप नहीं खा सकते हैं। उसको आप उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, आप उसको संभाल सकते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो आपके लिए नहीं है। प्रेज गॉड। सो हर बार जब उस पेड़ को, अगर आप ईदन की वाटिका में होते हैं और आप उस फल को, उस पेड़ को देख रहे हैं, तो आपके मन में यह आएगा कि परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ के फल को हमें नहीं खाना है। हर बार जब आप बगीचे में हैं, काम कर रहे हैं, आप आदम और हवा उस बगीचे में हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और जब भी उनका नजर इस पेड़ की तरफ जाता जो बीच में है, वो बोलते हैं कि ये परमेश्वर का पेड़ है, इस पेड़ के फल, ये फल हमारे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है। बाकी सारे पेड़ से हम खा सकते हैं, पर इस पेड़ के फल को प्रभु ने कहा है कि इस पेड़ के फल को हमें खाना नहीं है। प्रेज गॉड। लुक एट दिस। 3 सिद्धांत मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि आखिरी सेशन है आज इस महीने का। योर टाइथ इज होली टू द लॉर्ड, for it reveals your honor for and dependence on God. आपका दशमांश प्रभु के लिए पवित्र है, इट्स होली। आपका दशमांश प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रति आपके आदर और उस पर आपकी निर्भरता को प्रकट करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे पहला सिद्धांत, कि जो भी प्रभु ने आपको दिया है, ईदन की वाटिका प्रभु ने दिया है, सारे पेड़ प्रभु ने दिए हैं, सारा फल प्रभु ने दिया है, नदी भी प्रभु ने दिया है। प्रेज गॉड। और प्रभु ने कहा कि आपको और मुझे याद रखना है कि जो बगीचा आपके पास है, जो पेड़ आपके पास है, जो नदी आपके पास है, ये आपके और मेरे वजह से नहीं है, ये प्रभु के वजह से है। इट्स बिकॉज ऑफ गॉड। और क्योंकि ये प्रभु के वजह से है, हमें प्रभु का आदर करना है और बार बार ये प्रकट करना है कि प्रभु हम स्वतंत्र नहीं हैं, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्योंकि जिस दिन आप स्वतंत्रता प्रकट करते हैं,
या स्वतंत्रता घोषित करते हैं कि भाई मैं अपने ही बलबूते में हूं, मैं अपनी ही मेहनत से हूं, मैं अपने ही होशियारी से हूं, मैं अपने ही कॉन्टैक्ट से हूं, मैं इसके वजह से हूं, उसके वजह से हूं, परमेश्वर की वजह से नहीं हूं। इट्स अ डेंजरस टाइम। ये बहुत खतरनाक समय है जब एक व्यक्ति स्वतंत्रता की घोषणा करता है कि मैं जो भी हूं मेरे वजह से हूं, मैं जो भी हूं मेरी मेहनत की वजह से हूं, मैं जो भी हूं मेरे पढ़ाई की वजह से हूं, मैं जो भी हूं मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से हूं, मैं बहुत अच्छा बात करता हूं तो मैं जो भी हूं मेरे बात की वजह से हूं। प्रेज गॉड। जो आवाज आपके अंदर से निकल रहा है परमेश्वर ने दिया है आपको। मैं जो भी हूं, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं किसका है? परमेश्वर का है। अभी वो बारिश के पानी के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। जो सांस आप लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। उसके पहले हम निकल जाएंगे यहां से, कलीसिया उठा लिया जाएगी। आमेन। बिकॉज पैसों का प्रेम, ये जो ग्लोबल एजेंडा है कि जो पानी भी हम इस्तेमाल करते हैं जो स्वर्ग से, उसके ऊपर भी टैक्स लगाना, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जो सबको दिया गया है उसके ऊपर भी टैक्स लगाना कि कितना आप ले रहे हैं अंदर, क्योंकि आप पूरा ले लेंगे तो बाकी लोग का क्या होगा। Praise God. Craziness. ओके, सो योर टाइथ, आपका दशवांश प्रभु के लिए पवित्र है। ओके, क्यों वो पवित्र है? आपका दशवांश प्रभु के लिए पवित्र क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति आपके आदर को दिखाता है। क्या आप मानते हैं कि आप जो भी है उसमें परमेश्वर का हाथ है? क्या परमेश्वर ने कुछ किया है आपके लिए? कि जो भी आज आपको मिल रहा है, कि जो भी आप आशीष पा रहे हैं, जो भी बढ़ोतरी को आप देख रहे हैं, क्या उसमें परमेश्वर का थोड़ा सा भी हाथ है? क्या परमेश्वर उसके लिए थोड़ा सा भी जिम्मेदार है? अगर है तो परमेश्वर ने कहा कि पहला और सबसे अच्छा किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। ये बात रकम के बारे में नहीं है, बात आदर के बारे में है। इट्स अबाउट ऑनर। हर बार जब सोचिए, हर बार जब आदम एदन की वाटिका में चल रहा है और जब भी वो उस पेड़ को देखता, उसे परमेश्वर याद आता। ये परमेश्वर का पेड़ है, इट्स द ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा है कि इसके फल को नहीं खाना है, बाकी सबके फल को खा सकते हैं। सो आपका दशवांश पहला 10% प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आपके आदर को दर्शाता है, आपके वजन को दर्शाता है कि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति वजन कितना है। क्या परमेश्वर कोई मायने रखता है कि सब आपकी मेहनती है? कि परमेश्वर कुछ वजन रखता है कि सब आपकी पढ़ाई है? परमेश्वर कुछ वजन रखता है कि सब हमारा दौड़ी है सब कुछ? प्रेज गॉड। नहीं, आपका दशवांश प्रभु के लिए पवित्र है क्योंकि यह परमेश्वर के प्रति आपके आदर को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। यही चीज उन्होंने खाया और वो बगीचे के बाहर थे। पेड़ गया हाथ से, नदी गई हाथ से, बगीचा गया हाथ से, फल गया हाथ से, सब कुछ हाथ से गया। और अभी कहा गया उनसे कि तुम पसीने में और दुख में तुम संघर्ष करोगे और तब जाके जमीन तुम्हारे लिए भोजन लाएगी। वो हमारा जीवन नहीं था, दैट वाज नॉट आवर लाइफ। प्रभु का एक ही आज्ञा था कि स्वीकार करो कि तुम जो भी हो मेरे वजह से हो। कबूल करो कि जो भी तुम्हारे पास है मेरे वजह से है। मुझे मलाकी की किताब में प्रभु ने कहा कि एक बेटा अपने पिता का आदर करता है, एक गुलाम अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर किधर है? प्रेज गॉड। सो प्रिंसिपल नंबर 1, आपका दशवांश 10%, पहला 10% प्रभु के लिए पवित्र है क्योंकि यह परमेश्वर के प्रति आपके आदर और आपकी निर्भरता को प्रकट करता है। नेक्स्ट वर्स, प्रोवर्ब्स 3। अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के
पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आदर, बात आदर की है, बात निर्भरता की है, बात पेमेंट की नहीं है, बात आदर की है। कितना वजन रखता है प्रभु आपके हृदय में? हाउ इंपॉर्टेंट इज ही? क्या वो जरूरी है? क्या वो सच में कुछ कर रहा है आपके लाइफ में? क्या उसके वजह से आप बढ़ रहे हैं? ये प्रतिष्ठा की बात है। इट्स अबाउट ऑनर, इट्स अबाउट वेट। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। ऑनर हिम, गिव हिम वेट, वजन देना उसे और बताना उसे कि सब कुछ उसके वजह से है। हालेलुया। नाउ वर्स 10, ऐसा करने से क्या होगा? इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। आपको पता है हमारा जीवन, आर्थिक जीवन कैसा होना चाहिए? इसमें है हमारा आर्थिक जीवन भरा और पूरा और उमड़ता हुआ। या 26 में भी, प्रेज गॉड, हमारा जीवन आर्थिक क्षेत्र में भरा, पूरा, उमड़ता हुआ। प्रेज गॉड। आपका और मेरा आर्थिक जीवन, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दी है, प्रभु ने हमसे कहा है कि जो उसका आदर करता है, जो उसकी प्रतिष्ठा करता है, उनका जीवन भरा, पूरा, उमड़ता हुआ। सब बोलिए, मेरा जीवन भरा, पूरा और उमड़ता हुआ है। सो हमारे पास वचन है कि अगर आप उसका आदर करें, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड, अगर आप उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और सही मानसिकता के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर के राज में डोनेशन नहीं होता। वी नॉट हेल्पिंग गॉड, हम परमेश्वर की मदद भी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के राज में जब हम देते हैं, हम परमेश्वर के राज में हम आदर दे रहे हैं, ऑनर। हम परमेश्वर के राज्य में वजन दे रहे हैं कि प्रभु जो भी हैं हम, ये बगीचा जो हमारे पास है, ये पेड़ जो हमारे पास है, ये काम जो हमारे पास है, ये सेहत जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, इसके लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार हैं और वो आप हैं। या प्रेज गॉड। ओके, प्रिंसिपल नंबर 2, दूसरा सिद्धांत देखिए। व्हेन गॉड गिव देम सीड, he was giving them multiplication, continuity and a future. जब परमेश्वर ने उन्हें बीज दिया, God gave them seed. एदन की वाटिका का रहस्य है ये। जब परमेश्वर ने उन्हें बीज दिया, तब वह उन्हें बढ़ोतरी, निरंतरता और भविष्य दे रहा था। वो 2 से 3 कैसे हुए? बीज के द्वारा। प्रभु ने बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन सिर्फ एक ही बार लगाया। आज तक पेड़ हैं, आज तक पेड़ हैं। एक ही बार मिट्टी से आदम को बनाया, वापस मिट्टी में गया नहीं। लेकिन आज इतने सारे इंसान कैसे हैं? जब परमेश्वर पसली से निकाला 2 लोगों को, और फिर 2 से आज 8.24 अराउंड 9 बिलियन पीपल। आप सोच के देखिए, 9 बिलियन लोग आज इस धरती में है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया कितनों को? एक को बनाया मिट्टी से, उसके अंदर जीवन के श्वास को फूका, और आज एक व्यक्ति से आज करीबन 9 बिलियन लोग धरती में हैं। अगर आप पूछें कि परमेश्वर ने तो एक को बनाया, ये 1 से 9 बिलियन कैसे हो गए? बीज के द्वारा, थ्रू सीड। आदम और हव्वा का विवाह हुआ, विवाह के द्वारा वो गुना होने लगे, बढ़ोतरी होने लगे, और फिर आज इस दुनिया में, इस धरती पर 9 बिलियन लोग हैं। 9 बिलियन, कैन यू इमेजिन? 9 बिलियन पीपल, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, 195 कंट्रीज। प्रेज गॉड। सो जब तो परमेश्वर का काम करने का तरीका देखिए कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। एदन की वाटिका में परमेश्वर ने क्या रहस्य आदम को दिया। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर ने उन्हें बीज दिया, तब वो उन्हें बढ़ोतरी दे रहा था। जब परमेश्वर ने उन्हें बीज दिया, तो वो उन्हें निरंतरता दे रहा था कि तुम्हारा मानव जाति बने रहे। नहीं तो अगर मानव जाति बने नहीं रहते तो आदम और हव्वा कभी 3 नहीं होते हैं, और आज 9 बिलियन नहीं होते लोग। परमेश्वर जब बीज देता है तो वो
निरंतरता देता है कि मानव जाति बनी रहे, मानव जाति की बढ़ोतरी हो और उनके पास एक भविष्य रहे। तो बीज बोना ये परमेश्वर का सिद्धांत है जो एदन की वाटिका में शुरू हुई है। प्रेज गॉड। पाप के पहले, मूसा के पहले। ग्लोरी टू गॉड। ओके, आगे देखिए, लेट्स गो फॉरवर्ड। दिस इज, ये दूसरा सिद्धांत है। उत्पत्ति 1:27, जेनेसिस 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नेक्स्ट वर्स 28। तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सुनिए, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो और फलो। आप जानते हैं बीज के बगैर फल नहीं आ सकता। फूलने और फलने के लिए बीज चाहिए। विदाउट सीड देयर इज नो फ्रूट। लेकिन अभी वो आदम को देखकर बोल रहा है, आदम को देखकर, आदम हवा को, नर नारी को देखकर बोल रहा है कि फूलो, फलो और फूलो। मतलब 2 हो, 2 से 3 हो जाओ, 3 से 15 हो जाओ, 15 से 9 बिलियन हो जाओ। प्रेज गॉड। सी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। डोमिनेट इट, डोमिनेट इट। तो जब परमेश्वर ने हमें बीज दिया, आदम और हवा को, तो परमेश्वर अगर बोल रहा है कि फूलो, सो ऑब्वियसली परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर ने आदम को क्या दिया। प्रेज गॉड। हवा को क्या दिया? परमेश्वर ने आदम को बीज दिया है, परमेश्वर ने हवा को वूम्ब दिया है, इसलिए शी इज वुमन। ओके, सो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो। 2 ही लोग हैं, आज 9 बिलियन लोग हैं। प्रेज गॉड। एक चीज जो मानव जाति अच्छे से कर रहा है, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। सो नोटिस, 2 ही लोग थे, 2 लोग से आज 9 बिलियन लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बीज दिया है। जब बीज दिया तो प्रभु ने हमें बढ़ोतरी दिया। जब हमें बीज दिया, प्रभु ने हमें निरंतरता दी और प्रभु ने हमें भविष्य दिया। नाउ अगेन नेक्स्ट वर्स 129। इसको ध्यान से देखिए। एक ही बार परमेश्वर ने पेड़ उगाए, उसके बाद नहीं उगाया। जस्ट वन टाइम, एक ही बार पेड़ उगाया, उसके बाद नहीं उगाया। क्यों नहीं उगाया? क्योंकि प्रभु ने हमें बीज दिया। उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो। परमेश्वर आदम और हवा से बात कर रहा है। परमेश्वर ने उनसे कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। नोटिस कितना महान और बढ़िया हमारा पिता है कि जब वो आदम और हवा से बात कर रहा है, नोटिस द स्ट्रेस इज ऑन सीड। वो बोल रहा है कि जितने बीज वाले पेड़ हैं। सोचिए, आदम जिसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता, अभी अभी आया है, अभी अभी आंखें खोली, पेड़ सब जगह, फल सब जगह, और प्रभु उसको बोल रहा है उसके वचन से कि जितने बीज वाले पेड़ हैं, जितने बीज वाले वृक्ष हैं, ये सब तुम्हारे लिए हैं। मतलब गॉड इज गिविंग हिम अ सीक्रेट। प्रभु उसे एक रहस्य दे रहा है। क्योंकि अगर आदम और हवा भूखे हैं और सारे पेड़ खा के खत्म कर दिया, तो क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा? आदम और हवा इतने भूखे थे कि सब खा के खत्म कर दिया, सोचा ही नहीं बच्चों के बारे में। तो प्रभु ने कहा, ऐसा करने से पहले मैं कुछ बोलता हूं आपको कि जितने बीज वाले
प्रभु उनको बोल रहे जितने बीज वाले, आई थिंक प्रभु ने थोड़ा स्ट्रेस किया रहेगा उसमें कि आदम के मन में घुसे ये बात, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दे दिया है। बोलने का मतलब क्या था कि फल को खाना, बीज को बोना, isn't it? Eat the fruit, sow the seed. अगर आप फल खाते हैं, बीज नहीं बोते हैं, तो वो उस पेड़ का अंत होगा, इट्स ओवर। अगर आदम और हवा साथ में नहीं आते हैं और बीज नहीं बोते हैं, तो पूरे पृथ्वी पर आज सिर्फ आदम और हवा ही रहते हैं। प्रेज गॉड। सो बीज के द्वारा चीजें बढ़ोतरी में जाती हैं, बीज के द्वारा निरंतरता आती है, बीज में भविष्य छुपा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि जितने पेड़ हैं जिसमें बीज हैं, जितने वृक्ष हैं जिसमें बीज हैं, ये सब मैंने तुम्हें भोजन के लिए दे दिया है। सो द सीड, सो द सीड, बीज बोते रहना। सोचिए, किसान कटनी उसको हुआ और पूरे कटनी को खा लिया। आपको पता है उसने क्या खाया? He ate his future. एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर भी हैं। पिछले महीने वो उनके खेत से जो चावल है, सबसे बढ़िया चावल, उन्होंने हमसे कहा कि सबसे बढ़िया चावल जो उनके खेत से निकला, सबसे पहला, सबसे उत्तम, वो जब हमसे मिलने आए तो वो चावल करीबन मुझे लगता है 8 किलो कुछ वो चावल लेकर आए। प्रेज गॉड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप अपने भविष्य का सोच रहे हैं, फ्यूचर, अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रभु ने जो सिद्धांत हमें दिया है कि पेड़ अगर आप भविष्य तक चाहते हैं तो बोते रहिए, वृक्ष अगर आप भविष्य तक चाहते हैं तो बोते रहिए, क्योंकि भविष्य, बढ़ोतरी और निरंतरता बीज में छुपी हुई है। आमीन। सेकंड प्रिंसिपल कि बीज बोना सब खाने के लिए नहीं है, सब खाने के लिए नहीं है, बोने के लिए कुछ है। देयर इज समथिंग टू सो एंड यू सो इट। जहां पर भी प्रभु आपसे कहें वहां पर आप बीज बो दीजिए, सो द सीड। इनफैक्ट प्रभु इतना इंटरेस्टेड है हमारे बीच में कि प्रभु ने कहा कि अगर आप बोने वाले हैं तो मैं आपको बीज दूंगा। प्रेज गॉड। कि अगर आप बोने वाली मानसिकता के व्यक्ति हैं, अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं और अगर आप प्रभु से मांगेंगे, तो प्रभु ने कहा कि मैं बोने वाले को बीज दूंगा। प्रेज गॉड। ताकि चीजें निरंतरता में रहें, आपका एक भविष्य हो और आपके लिए बढ़ोतरी हो। सो डोंट स्टॉप सोइंग। आप कभी भी, पहला हमने देखा दशवांश, दूसरा हमने देखा बीज बोना। डोंट स्टॉप इट, क्योंकि परमेश्वर के राज में वैसे बढ़ोतरी होती है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल, dominion is to be exercised through words, especially financial dominion. डोमिनियन सेविंग से नहीं आएगा, सेविंग जरूरी है, बट आत्मिक क्षेत्र में अगर आर्थिक प्रभुत्व चाहिए तो मुंह खोलना पड़ेगा हमें। यू हैव टू टॉक, क्योंकि ये सारी कायनात को शब्दों से रचा गया है, शब्दों से संभाला जाता है सब कुछ। इसीलिए अगर अधिकार का प्रयोग, अधिकार का इस्तेमाल, आर्थिक प्रभुत्व का प्रयोग शब्दों के द्वारा किया जाता है, थ्रू वर्ड्स, तो अगर आप देने वाले व्यक्ति भी हैं, यू हैव टू टॉक। इसीलिए वो किताब हमने लिखा है, समृद्धि अब समृद्धि सदा, क्योंकि आपको बोलना है, यू मस्ट टॉक। हमें बात करना है, हर दिन हमें बात करना है कि हमारा समृद्धि का जीवन कैसा है, हाउ इज इट। बिकॉज डोमिनियन, जो राजा होते हैं, जो ऊंचे पद में अधिकारी होते हैं, उनका अधिकार वो कैसे प्रयोग करते हैं? शब्दों के द्वारा। इट्स थ्रू वर्ड्स, दे हैव टू टॉक। इसलिए यीशु मसीह का जीवन आप देखिए, उन्होंने आंधी को डांटा शब्दों से, दुष्टात्माओं को निकाला शब्दों से, रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया शब्दों से, मच्छी के मुंह से भाड़े का पैसा आया शब्दों से। सब कुछ शब्दों से हो रहा है। एवरीथिंग इज थ्रू वर्ड्स।
और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप आर्थिक प्रभुत्व में चले, जो आपका हक है, इट इज योर राइट। ये सिर्फ 2-3 लोगों के लिए नहीं है क्योंकि उनका इनकम बड़ा है, ये सबके लिए है। इट्स फॉर एवरीवन। प्रेज गॉड। ये सिर्फ 2-3 लोगों के लिए नहीं है जिनका पगार ज्यादा है। परमेश्वर के राज्य में किसी का कोई पक्षपात नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आपके पास ये सिद्धांत है और अगर आप इसको लागू करने का अगर आपके पास हियाव है, प्रेज गॉड, और अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं और फिर उसके बाद मुख खोलिए एंड टॉक। हमारे घर में कोई गरीबी नहीं। प्रेज गॉड। हम हमेशा जरूरत से ज्यादा में रहते हैं। यहोवा का आशीष हमें धनवान कर रहा है हर समय, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। यहोवा की आशीष हम में काम कर रही है। उसके विपरीत अगर एक व्यक्ति कहे इसका दाम बढ़ रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा रहता नहीं है, पैसा कहाँ जाता है, पैसा इतना खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों का फीस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, आपके ही मुंह ने आपको आर्थिक संघर्ष में रख दिया है। योर माउथ। एक व्यक्ति सोचिए, वो शायद दशवांश भी देता है, वो शायद बीज भी बोता है, लेकिन उसका मुंह ठीक नहीं, इट्स माउथ। और उसके लापरवाह मुंह ने इस व्यक्ति को गरीबी में बांध के रखा है। वो कितना भी कमाए, उसको पता नहीं पैसा कहां जाता है। ही डोंट नो, उसे पता नहीं पैसा कहां जाता है। कितना भी उसके पास आए, उसको कोई आइडिया नहीं है किधर गया पैसा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका मुंह ठीक नहीं है, हिज माउथ। उसके मुंह ने उसको कंगाल रखा है। उसके मुंह ने उसके पॉकेट में छेद कर दिया है। उसको पता नहीं उसका पैसा कहां जाता है। ही डोंट नो। इसीलिए प्रभुता या आर्थिक प्रभुता आप प्रयोग करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, थ्रू वर्ड्स। प्रेज गॉड। यू हैव टू टॉक। आपको और मुझे बोलना है। वी हैव टू टॉक। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26। इसको देखिए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, जब आपके सारे बिल भरे हुए हैं, प्रार्थना करने में मजा आता है कि नहीं? जब कोई आपको फोन करके परेशान न कर रहा हूं, पेमेंट दो पेमेंट दो, तो प्रार्थना करने में और मजा आता है। प्रेज गॉड। और ये समृद्धि जब अनुग्रह से आता है तो और थोड़ा मजा आता है। प्रेज गॉड। इसलिए दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। यही मैं चीज आपको सिखा रहा हूं कि ये कुछ लोगों के लिए नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये अनुग्रह से है तो सबके लिए है। अगर अनुग्रह से नहीं है, होशियारी के ऊपर है, कलर के ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है, तो फिर सबके लिए नहीं है। क्योंकि सबका एक जैसा कलर नहीं, सबका एक जैसा पढ़ाई नहीं, सबका एक जैसा कद नहीं। अगर अनुग्रह से है तो फिर सबके लिए है, और ये अनुग्रह से है। इट्स बाय ग्रेस। किसी को भी आर्थिक संघर्ष में रहने की जरूरत नहीं, नो वन। लेकिन उनका चुनाव, उनका मुंह अपने बीजों को खा लेना, उसके कारण वो आर्थिक संघर्ष में है। इसीलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आर्थिक संघर्ष में रखा है। प्रेज गॉड। ओके, सो फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वह मछलियों, पक्षियों, पशुओं, सारे पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पृथ्वी पर प्रभुता रखें। दे मस्ट डोमिनेट। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा उन्हें, प्रभु मतलब संसाधनों के ऊपर। 5 चीज देखिए, पूरा रिसोर्सेस। ओके, लेट्स सी इट अगेन। ये जो 5 चीज जिसके ऊपर प्रभुता रखने कहा है, उसमें कोई भी इंसान नहीं है। एक दूसरे के ऊपर प्रभुता रखो। प्रभु ने कहा ये 5 चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसी से सारी दुनिया के संसाधन हैं। और प्रभु ने कहा संसाधनों के ऊपर प्रभुता रखो। और आज भी प्रभु का एजेंडा वही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं। आमीन। उसने क्या कहा कि
समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। मतलब सारे संसाधनों पर प्रभुता रखो। इसीलिए प्रभु ने मानव जाति को बनाया है। प्रेज गॉड। प्रभु कभी नहीं चाहता था कि हम संसाधनों के पीछे भागें। हो सकता है शायद आज आपका जीवन संसाधनों के पीछे है, आप अपनी सफलता को शायद उससे नापते हैं। लेकिन एदन की वाटिका में अगर आप आए, एदन की वाटिका में प्रभु ने हमसे कहा कि संसाधनों पर प्रभुत्व रखो, संसाधनों को अपने वश में रखो। और वो कैसे करेंगे हम? अगला वचन देखिए। फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, यू डोमिनेट बाय वर्ड्स, यू डोमिनेट बाय वर्ड्स। आप शब्दों से प्रभुत्व करते हैं। जिसका शब्द लापरवाह। मैं बाइबल कॉलेज में था पिछले हफ्ते, पूरा 99% स्टूडेंट्स जेंजी, पूरा जवान लोग। उनको बोल रहा था ये पागल बैच है ये सच। क्योंकि इतने सालों में आई एम टेलिंग यू, मुझे पता चला क्यों प्रभु लेकर गया मुझे। इतने सालों में जो बाइबल कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है, ये बार इट वाज द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, जो मैंने खुद ने नहीं देखा है, अनुभव नहीं किया। प्रेज गॉड। ओके, इट वाज अमेजिंग। सो आई एम टेलिंग यू दिस कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, ही सेड, प्रभु ने कहा, फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, सारे संसाधनों पर अधिकार रखो। कैसे? शब्दों से, स्पीक। जिसका मुंह लापरवाह, उसका जीवन लापरवाह। अ केयरलेस माउथ इज अ केयरलेस लाइफ। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं कि अपने मुंह से वो प्रभुत्व को दिखाता, अपने मुंह से वो प्रभुत्व को इस्तेमाल कर, अपने मुंह से अपने प्रभुत्व का उपयोग वो करता। और वही हमारा जीवन है। सबसे पहले जो भी आपके पास है, नो मैटर द अमाउंट। एक विधवा स्त्री, आप जानते हैं, विधवा स्त्री यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह ऑफरिंग बॉक्स के सामने खड़े थे और विधवा स्त्री आई। विधवा स्त्री ने 2 दमड़ियां, 2 कॉपर कॉइन्स, 2 दमड़ियां डाली और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा देने वाली व्यक्ति ये स्त्री है। सो ऑब्वियसली इज नॉट अबाउट द अमाउंट, कि प्रभु रकम के बारे में नहीं देख रहा है, क्योंकि उसे इंप्रेस नहीं किया जा सकता। जो सोने के रोड में चलता हो उसको कैसे आप इंप्रेस करें? प्रेज गॉड। सो एनीवेज, प्रभु का सबसे पहला कदम एदन की वाटिका में है कि आदर करें। स्वतंत्रता घोषणा मत करिए कि मैं खुद से हूं, मैं ये हूं, मेरा ये है, मैं इसके वजह से हूं। नहीं, सबसे पहला स्वीकार करिए कि आप जो भी हैं, आपके पास जो भी है, वो सब कुछ प्रभु के वजह से है। दैट्स फर्स्ट। दूसरा, प्रभु ने जब उनको पेड़ दिए, प्रभु ने उन्हें बीज दिए, दूसरा पेड़ नहीं दिया। एक ही बार पेड़ों को लगाया और फिर छोड़ दिया, फिर वापस पेड़ नहीं लगाया। इतने साल हो गए, 6000 साल हो गए, वापस पेड़ को नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि प्रभु की अपेक्षा थी कि जब इस फल को खाओगे, इसका बीज तुम बो देना ताकि तुम्हारा भविष्य बना रहे। अपने भविष्य को खाना मत। डोंट ईट योर फ्यूचर। अपने निरंतरता को, बढ़ोतरी को खराब मत करना। प्रभु से मांगना कि प्रभु, आपने कहा कि बोने वाले को आप बीज देते हैं, वो आपके हाथ में वो पैसा लेकर आएगा, और जब आएगा जस्ट रिलीज इट। फिर आपका बीज आपको भविष्य में मिलने वाला है। आमेन, प्रेज गॉड। और तीसरा हमने कहा कि अगर आप आर्थिक प्रभुत्व में चलना चाहते हैं तो अपने मुंह को संभालिए, नहीं तो फिर आपका मुंह आपको गरीब रखेगा। योर माउथ विल कीप यू पुअर। आप ये सीलिंग के ऊपर जा नहीं सकते हैं। आप जितना भी कोशिश करें, आप सीलिंग से टकराकर वापस नीचे आ जाएंगे। वैसे ही जहां तक आपके शब्द जाते नहीं, आप वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आपको वहां पर जाना है, आपके शब्दों को पहले वहां पर जाना है। और आप समृद्धि के विषय में आप बात कर रहे हैं, समृद्धि के विषय में आप घोषणा कर रहे हैं,
कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर रहा है, ताकि हर समय हर बात में हमेशा जरूरत से ज्यादा हमारे पास है। यहोवा का आशीष मुझ में काम कर रहा है, मैं दिन प्रतिदिन दुख रहित धन से धनवान होते जा रहा हूं। प्रेज गॉड, आमेन। वो वचन को लेकर के आप आवाज दे रहे हैं, आप वचन को लेकर के आवाज दे रहे हैं, और आप अपनी प्रभुत्व को लागू करते हैं शब्दों के द्वारा, थ्रू वर्ड्स। सारा पानी जो नीचे था परमेश्वर के मुंह के द्वारा एक साइड में आया, परमेश्वर के मुंह के द्वारा, थ्रू हिज माउथ। जमीन बाहर आए, परमेश्वर ने कहा जमीन बाहर आया। प्रेज गॉड। सो दीज आर कुछ कुंजियां हैं, अगर आप इसे लागू करें और इसके बारे में आप सोचें और इसे आप लागू करें, आई बिलीव कि बहुत आसानी से आप समृद्ध होने लगेंगे, वेरी इजीली। अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे आपके लिए, प्रेज गॉड। रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए, फेवर आने लगेगा, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि सबके पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रेज गॉड। और आप अपने मुंह को संभाल रहे हैं, गरीबी मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, तंगी मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, महंगाई मेरे मुंह पर नियंत्रण नहीं करेगा। पगार 4 दिन लेट आया है, वो जो लेट से आया है वो मेरे मुंह पर नियंत्रण नहीं करेगा, महंगाई मेरे मुंह पर नियंत्रण नहीं करेगा। किसी को कुछ देना था वो नहीं दे पाए, उन्होंने आपके पैसे को पकड़ के रखा है, उनका व्यवहार मेरे मुंह को नियंत्रण नहीं करेगा। आमीन। मेरे मैनेजर का व्यवहार मेरे मुंह को नियंत्रण नहीं करेगा, महंगाई मेरे मुंह को नियंत्रण नहीं करेगा, सरकार की नीतियां मेरे मुंह को नियंत्रण नहीं करेगा। हमने ठान लिया है कि हम परमेश्वर के वचन को आवाज देंगे। प्रेज गॉड। यहोवा का आशीष मुझ में काम कर रहा है और वो मुझे दुख रहित धन से धनवान करते जा रहा है। सारा अनुग्रह प्रभु ने मेरे ऊपर आजाद कर दिया है कि हर समय हर बात में हमेशा जरूरत से ज्यादा मेरे पास रहता है, और हर भले काम के लिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। आप क्या कर रहे हैं? आप आवाज दे रहे हैं, यू गिविंग वॉइस। जैसे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूं। कैसे दिया आशीष? वर्ड्स, शब्दों से आशीष दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा इजरायलियों के विषय में कि जब याजक अपने हाथ को उठाएं और आपके ऊपर शब्दों को आजाद करें तो यहोवा का आशीष आपके ऊपर आ जाएगा। इट्स थ्रू वर्ड्स, इट्स थ्रू वर्ड्स। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जरूर शब्दों से समृद्धि के शब्दों को बोलिए। आसान है समृद्धि, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हो सकता है कि आपने समृद्धि के विषय में बहुत संघर्ष किया है और बहुत मुश्किलों को आपने देखा है फाइनेंशियल लाइफ में, और बहुत तकलीफ से आप गए हैं, लेकिन आपके लिए एक बेहतर जीवन है। देयर इज अ ग्रेट लाइफ। प्रभु की कभी मंशा नहीं थी कि उसके बेटे और बेटियां समृद्धि के पीछे संघर्ष करते रहें। उसने पहले प्रावधान दिया, फिर आदम को वहां पर रखा। तो हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आपको किसी के लिए टाइम नहीं है, कुछ के लिए टाइम नहीं है, और जो प्रावधान आता है वो रहता भी नहीं है, आपको पता नहीं कहां निकल जाता है बॉस। लेकिन ये जीवन नहीं है आपके लिए। देयर इज अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जीवन है, और वो रहस्य ईदन की वाटिका में है। प्रभु ने उससे कहा कि ये कुछ कुंजियां हैं, और देखिए आज भी पेड़ हैं। टुडे ऑल्सो देयर आर ट्रीज। आज भी लोग हैं, बनाया एक ही को, आज भी लोग हैं। और जितनों ने अपने मुंह में महारत हासिल किया है, सब के सब आर्थिक क्षेत्र में उड़ रहे हैं। दे विल फ्लाई। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने आप मुंह को जरूर संभालिए। किसी ने कहा मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, नहीं, उससे अच्छा है कि वचन बोलिए। आप समृद्धि के वचन को बोलिए। आज बदलाव नहीं दिखेगा, इट्स ओके, लेकिन जब आप बोलने का ठान लेते हैं, आत्मिक क्षेत्र में चीजें घूम रही हैं, चेंजिंग, और फिर आप बोलते रहेंगे हर दिन
आप बोलते रहेंगे, आप उसको आवाज देते रहेंगे, वो काम आत्मिक क्षेत्र में इतना बढ़ेगा कि एक दिन शारीरिक क्षेत्र में फूट कर निकलेगा। प्रेज गॉड। और आपको पता भी नहीं कि ये पूर्व से लोग आपका सोना और गंधरस लेके कैसे आ रहे हैं। यू डोंट नो। प्रेज गॉड। बट गॉड नोज अ लॉट ऑफ पीपल। परमेश्वर के पास बहुत से मौके हैं, परमेश्वर बहुतों को जानता है। परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करके जगह प्रभु ने तैयार किया है, ताकि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर पर रहे, उसके एपिग्नोसिस में रहें, उसके साथ बढ़ने में रहें, उसके एजेंडा को पूरा करने में रहें। ये परमेश्वर की मनसा है। आज बहुत सारा मानव जाति, बहुत पूरा मानव जाति ईदन की वाटिका से भटक गया है। वो अपनी सफलता को प्रावधान में नापते हैं। जिस प्रावधान में वो पैदा हुए थे, उस प्रावधान में नापते हैं वो अपनी सफलता को। प्रेज गॉड। बट दैट्स नॉट आवर लाइफ। ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन यीशु के एपिग्नोसिस में बढ़ना है, उसके रिश्ते में बढ़ना है। उसको आप कितना बेहतर, मैं उसे कितना बेहतर जानता हूं, और उसके पहचान का प्रभाव मेरे जीवन में कितना दिख रहा है, उसका प्रभाव, उसकी पहचान का प्रभाव मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितना दिख रहा है। मेरे शब्दों में, मेरे पत्नी के साथ मेरे व्यवहार में, मेरे बच्चों के साथ मेरे व्यवहार में, मेरे जो असाइनमेंट्स हैं जो प्रभु ने मुझे दिया है कि ये आपको करना है, तो उस असाइनमेंट्स को मैं कितना कर पा रहा हूं, ये सबसे सफलता नापा जाता है। प्रेज गॉड। आमेन। सो दैट वाज आवर सेशन ईदन की वाटिका में। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। अगले महीने आई वांट टू टेल यू कि नेक्स्ट संडे हमारा चंगाई का रविवार है। अगर आप बीमार हैं तो आप तैयारी के साथ आए हैं, प्रभु भोज भी लेंगे हम। पूरा सेशन चंगाई के बारे में होगा। आप तैयारी के साथ आइए। पहला संडे है अगस्त का, और प्रभु आपसे बातें करेगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, और उसके वचन के द्वारा आपका सेहत बेहतर होगा। प्रेज गॉड। आपका सेहत बेहतर होने लगेगा। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपका आदर करते रहें, हम हर बात में आपको सम्मान देते रहें, आपके बोने और काटने के सिद्धांत को लागू करें, और अपने मुंह को संभालें प्रत्येक रूप से इस कलीसिया में प्रभु। और जितने भी देख रहे हैं, हमें आप सशक्त करिए कि शब्दों में जीवन की दिशा छुपी हुई है, शब्दों में जीवन की गुणवत्ता छुपी हुई है, शब्दों में समृद्धि छुपी हुई है। इस बात का प्रकाशन आप हर एक भाई, हर एक बहन को दीजिए, ताकि आपके वचन से हम ये चीजों को देख सकें और इसको वजन दे सकें, और इसे अपने जीवन में हम लागू कर सकें, ताकि यहां पर कोई भी इन अंतिम दिनों में आर्थिक संघर्ष में न रहे, सब आर्थिक प्रभुत्व और स्वतंत्रता में रहें। वो आपके नियमों को लागू करते हुए पूरा मेहनत और ऊर्जा उनका आपके लिए रहे, जस्ट फॉर यू। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा पिता काम करता है, इसीलिए मैं काम करता हूं। यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है, इसीलिए मैं काम करता हूं। यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है, इसीलिए मैं काम करता हूं। ये वचन, ये वाक्य रचना हमारे जीवनों में वास्तविक हो प्रभु। हमारी मानसिकताओं को बदलने के लिए धन्यवाद। ईदन की वाटिका में वापस लेके आने के लिए धन्यवाद। वैसे जीवन शैली देने के लिए धन्यवाद। बेहतर चीजें आप हमें दिखा रहे हैं, हमारे जीवनों को आप बेहतर कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।